Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the hybridization. Let's start. In this video, we are going to discuss hybridization and the dipole moment. And I'm going to relate these topics with the Vesper theory which we discussed in the previous video. Valence shell electron pair repulsion theory में भी मैंने hybridization sp2, sp3 और sp molecules को relate करवाया था along with their geometry कि कौन-कौन सी geometry, कौन-कौन सी shapes होएगी sp2 की और sp3 की और sp hybridized orbitals की. So starting from the hybridization, after that we'll discuss some of the past paper questions or practice question for the dipole moment as well. So hybridization होती क्या है? Starting from this thing. Beta, we have different orbitals. Different orbitals की different energy भी होती है. They could have different shape. बेटा shape different है, energy different है, shape same भी हो सकती है, but energy would be different. तो बेटा different energies वाले orbitals जब intermix होते हैं, so they will give you the new orbitals which have same shape और same energy. ये point याद रखना है आपने कि जब भी hybridization होएगी, so hybridized orbitals बनते हैं at the end, they will have same energy and same shape. For example, we have sp3 hybridization. sp3 hybridization में होता क्या है? 1s orbital जो कि होते हैं spherical in shape and 3p orbitals. p orbitals are having dumbbell shape. तो बेटा जब ये mix होते हैं, they will intermix together. So it will form 4 new orbitals. 4 new hybridized orbitals बनेंगे. Hybridized orbitals क्यों कह रहा हूं? Because they would have same shape and same energy. इनकी shape क्या होती है बेटा? One small lobe with a bigger lobe. One small lobe with a bigger lobe. One small lobe with a bigger lobe. So इस तरह के 4 नए orbitals बन जाएंगे. sp2 में क्या होएगा? 1s and 2p orbitals will mix together and it will form 3 new orbitals. तो 3 यानी कि आपके पास hybridized orbitals बनेंगे with same shape and same energy. sp में we will have 1s and 1p orbital ये mix होंगे और 2 नए orbitals बन जाएंगे with same shape and same energy like this. Got it? तो बेटा यहीं से हमने रिलेट करवाया था विद एस करेक्टर परसेंटेज. एस करेक्टर किस में सबसे ज्यादा होएगा, किस में सबसे कम होएगा. वी हैव 1s और 3p. तो 25% इट हैज एस करेक्टर एंड 75% इट हैज p करेक्टर. 1:3 है ना. तो बेटा 1:3 से ही आप यहां से परसेंटेज भी इसके निकाल सकते हो. 1:2 है, एक s है, 2 p है. सो 33.33% s होएगा. 66.66% it has p character. In this way, we can also calculate the percentage character of s in sp जो कि 50% होएगा और 50% ही p होएगा. जितना ज्यादा S करेक्टर होएगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी. परसेंटेज ऑफ S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होएगी. परसेंटेज ऑफ S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ये तमाम पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, परसेंटेज एस करेक्टर किस तरह से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेट करता है, सो आप प्रीवियस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं. सो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 109.5 डिग्री का. It would have tetrahedral shape.
इसके अलावा ये याद रखना है, ये हमेशा जब भी सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव अल्कीन, तो बेटा जब सिंगल बॉन्ड होएगा सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स अल्केन्स में we will have sp3 hybridization. sp2 hybridization कब होएगी? when we will have carbon carbon double bond. तो इसकी शेप क्या होएगी? it would be trigonal planar. and the angle would be 120 degree का, ठीक है। इन sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा अल्काइंस होंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एंड द शेप इज लीनियर, ज्योमेट्री जो होएगी इसकी लीनियर होएगी और 180 डिग्री का एंगल होएगा। सो दिस इज sp, sp2 और sp3। सो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। बेटा CH4 कंपाउंड है आपके पास और यहां पे आपने बताना है कार्बन और हाइड्रोजन की ज्योमेट्री क्या होएगी, इस बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या होएगी। बेटा सिंगल बॉन्ड है एंड वी डिस्कस कि सिंगल बॉन्ड जब होएगा तो बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होएगी, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा एंगल क्या होएगा, इट मस्ट बी 109.5 डिग्री। अगर कोई लॉन पेयर होएगा तो एंगल रिड्यूस हो जाता है 109 से, इट कम्स ओवर 107। और अगर एक और लॉन पेयर होएगा, इट आई मीन इफ अ कंपाउंड इज हैविंग और एटम इज हैविंग 2 लॉन पेयर्स, तो इन दैट केस फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 104 तक आ जाता है, जस्ट इन द केस ऑफ H2O, जिस तरह आपने कल एग्जांपल्स में डिस्कस किया था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर द एंगल रिड्यूसेस। C2H6 बेटा दिस इज ईथेन। सो अगेन यहां पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल क्या होएगा और इसकी ज्योमेट्री क्या होएगी, इट इज अगेन टेट्राहीड्रल, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करनी है आपने, ठीक है। नो मैटर आपके पास मीथेन का हो, इथेन का हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जब सिंगल बॉन्ड्स की बात की जा रही है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्टक करना है आपने, ठीक है। सो एंगल क्या होएगा 109.5 डिग्री का। C3H6 दिस इज एल्कीन्स मेंबर, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, सो एल्कीन है। यहां पे पूछा जा रहा है कि कार्बन और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होएगी। बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जब भी आ जाएगा तो क्या होएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी। गॉट इट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल वुड बी 120, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। C4H6 बेटा अगर डबल से 2 कम हाइड्रोजन है तो दैट इज अल्काइन, तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन एंड एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। तो इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होएगी, सो बेटा इट मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होएगी इसमें और एंगल वुड बी 180 डिग्री का। तो इनमें अगर 180 डिग्री है तो ज्योमेट्री क्या होएगी, दैट इज लीनियर, इट इज लीनियर इन शेप, ठीक है। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, दिस इज डाइमिथाइल कीटोन और यू कैन से इट इज प्रोपानॉन, ठीक है। दोनों नेम्स इसके कॉमन नेम भी आपको बताया और IUPAC नेम भी डिस्कस किया। दिस इज प्रोपानॉन और एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस वन। कार्बन ऑक्सीजन इज हैविंग डबल बॉन्ड, तो बेटा यहां पे एंगल क्या होएगा, एंगल इज 120 अगेन, बिकॉज बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में वी हैव अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी, स्टक विद दिस पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट इज प्लेनर इन शेप, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होएगी। अगर आपसे कहा जाता है HCN मॉलिक्यूल है और C और N के दरमियान में जो कार्बन है C और N
carbon is having which hybridization? This is what you have to mention in the comment box. ठीक है? Again question बता रहा हूँ. HCN molecule में कार्बन की hybridization with nitrogen क्या होएगी? This is what you have to mention. Hybridization बताएं और उसका एंगल बताएं. ठीक है? So after that I'll give you the feedback कि आंसर क्या होना चाहिए था correct. ठीक है? So hope so you can relate the Vesper theories concept. और अगर क्योंकि ये तमाम एंगल्स और ये तमाम जियोमेट्रीज ये तमाम शेप्स हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी, we can relate that topic with hybridization as well. Got it? So what is dipole moment? Come to this point now. Dipole moment. Beta, first of all, it is a product of Q into R. Q is the charge और R क्या हुआ? दो चार्ज के दरमियान में जो डिस्टेंस है. ठीक है? So बेटा Q into R and this is a vector quantity. It is important point. It is a vector quantity. It has magnitude and it also has a direction. ठीक है? यानी कि ये magnitude और direction दोनों ही पे डिपेंड करेगी एक्चुअल जो डायपोल मोमेंट होएगा. सो बेटा एक चीज याद रखो, इफ द डायपोल मोमेंट इज 0 दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल. ठीक है? जिस कंपाउंड का ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 होएगा, मॉलिक्यूल इज हैविंग डायपोल मोमेंट 0, तो दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. डजेंट मैटर कि वो होमो एटॉमिक है या हेट्रो एटॉमिक है. इफ द डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 इट इज पोलर. रिमेंबर वी डिस्कस पोलर कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट डायपोल मोमेंट का आता है. सो डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो that compound is non-polar, or if the dipole moment is not equals to 0, it has some value, so that is polar in nature. और dipole moment की value बेटा we have two units, MC and that is meter coulomb, because charge है, charge का unit क्या होता है बेटा? coulomb होता है. ठीक है? So this is coulomb and distance is measured in the meter. So meter coulomb, that is also known as d by. So 1 d by is another unit, MC is another unit. So SI unit है ये आपके पास. And what is the relationship in between d by and MC, meter coulomb or d by में क्या relationship है? Please remember this value. 1 d by is equals to 3.36 into 10 raised to the power minus 30 meter coulomb. So this is the relationship in between these two units, meter coulomb and d by. So hope so ये key concept समझ आ गया होगा. This one. Now I'll try to relate this topic with the geometry. और geometry कहाँ पे डिस्कस की? वेस्पर थ्योरी में. It means वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, geometries को यूज करते हुए we can also find out the dipole moments of the compounds. So बेटा geometry of molecules and dipole moment को डिस्कस करते हैं. बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट के इफ यू हैव सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होएगा if it is not having any lone pair
जहां पे लॉन पेयर 0 होए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जहां पे कोई लॉन पेयर ना हो, नो लॉन पेयर। तो ऐसा मॉलिक्यूल आपने वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया था। वी हैव AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। जितने भी 2 0 वाली फॉर्मेशन है, AB3 टाइप में वी हैव 3 0, AB4 टाइप में वी हैव 4 0 वाले मॉलिक्यूल्स, AB5 टाइप में वी हैव 5 0 वाले मॉलिक्यूल्स, AB6 टाइप में वी हैव 6 0 वाले मॉलिक्यूल्स। बेटा ये तमाम मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होएगा। इन तमाम का डायपोल मोमेंट 0 होएगा इफ we have same atoms with the central atom. We have same atoms surrounded by the central atom. ये तो फिक्स होएगा हमेशा ही, इसमें देर इज नो एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव CO2, that is AB2 type molecule. You have BF3, that is AB3 type molecule. CH4, that is AB4 type molecule. You have PCl5, that is AB5 type molecule. You have tellurium fluoride, that is AB6 type molecule. बेटा ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? They have zero dipole moment, so it means they are non-polar. और बेटा अगर ये नॉन पोलर है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? लो होएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। सो हमेशा बेटा टॉपिक को रिलेशंस वाइज अंडरस्टैंड किया करो, रिलेट करवाया करो टॉपिक, और केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। अदरवाइज केमिस्ट्री के रिलेशंस अगर नहीं आप ड्राइव करते और मैकेनिज्म अपने माइंड में क्लियर नहीं करते तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे वी हैव अदर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल CCl4, चारों एटम्स एक जैसे हैं तो बेटा इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होएगा। BF3 की जगह पे यू कैन मेंशन BCl3, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, और यू कैन मेंशन एनी अदर कंपाउंड HgCl2, it has zero dipole moment like this. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जिनमें there is no lone pair and they have same atoms, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं? same atoms, no lone pair, same atoms around central atom. तो बेटा उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। दे वुड हैव 0 डायपोल मोमेंट, इट मीन्स दे आर नॉन पोलर। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब कुछ रिलेशनशिप हम डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव HCl और you have HBr, you have HI. बेटा remember this point कि dipole moment is directly proportional to electronegativity. Dipole
movement is directly proportional to electronegativity. And again, the dipole moment is directly proportional to boiling point. And dipole moment is directly proportional to polarity. Although यही तमाम पॉइंट्स हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्कस किए हैं अभी यहाँ पे. सो HCl और HBr और HI में से व्हाट डू यू थिंक किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होएगा? बेटा डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होएगा? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी. वी हैव क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होएगा. सो दैट्स व्हाई इट्स डायपोल मूवमेंट इज ग्रेटर. सो HCl हैज greater dipole moment out of these three. Clear? So this is our next question. यहाँ पे aromatic compounds को आप कुछ डिस्कस करते हैं कि how aromatic compounds are used in the dipole moment, कि किस compound का dipole moment zero होएगा और किस compound का dipole moment zero नहीं होएगा. बेटा we have CH3 बेंजीन के साथ, that is called as toluene. अगर बेंजीन की बात करें, रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये आपके एफएससी कंटेंट में ये क्वेश्चन भी होता है और ए लेवल्स में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है कि व्हाई बेंजीन इज नॉन पोलर, बिकॉज इट्स डायपोल मूवमेंट इज जीरो. जो बेंजीन है इट हैज जीरो डायपोल मूवमेंट. That's why it is non-polar. Reason क्या है? We have carbon on this side, 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 and we have carbon on this side. बेटा जितने भी कार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन का जितने भी बॉन्ड्स अटैच हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं, हर एक का अफेक्ट कैंसिल हो जाता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो C और H का वेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. जो इधर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल हो जाएगा. जो इधर प्रोड्यूस हो रहा है वो इधर कैंसिल हो जाएगा. सो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वी हैव सेम एटम्स ऑन ऑल साइड्स, तो बेटा वो जीरो डायपोल मूवमेंट शो कर देते हैं. सेम इज हैपनिंग इन AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स और AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स में यही सब कुछ होता है. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग जीरो डायपोल मूवमेंट. सो अगर कोई एटम चेंज हो गया, देखो यहां पे नाउ वी हैव C एंड C के दरमियान में बॉन्ड, नॉट विद H. दिस कार्बन इज हैविंग 1H, this carbon is having 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 1H. Although इधर का डायपोल मूवमेंट इधर के डायपोल मूवमेंट से कैंसिल हो सकता है, इधर का डायपोल मूवमेंट इधर के डायपोल मूवमेंट से कैंसिल हो सकता है, बट वी कैन नॉट कैंसिल द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस वन विद दिस हाइड्रोजन. सो इट हैज सम सॉर्ट ऑफ डायपोल मूवमेंट. ठीक है. We have two chlorine atoms. This is ortho position, this is meta position, and this is para position. बेटा now observe over here कि यहाँ का dipole moment is cancelled by this, this dipole moment is cancelled by this CCl's dipole moment is cancelled by this CCl's dipole moment. So बेटा सारे तो dipole moment cancel हो गए, so it has जीरो डायपोल मूवमेंट. सबसे कम यहां पे आपके पास आ गया, इट हैज सम डायपोल मूवमेंट. सो दिस Cl एंड दिस Cl वी कैन नॉट कैंसिल द डायपोल मूवमेंट्स ऑफ दीज टू स्पीशीज. दिस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, वी कैन कैंसिल दिस इफेक्ट, बट वी कैन नॉट कैंसिल दिस वन विद दिस वन, दिस वन विद दिस वन. सो इट हैज सम सॉर्ट ऑफ डायपोल मूवमेंट. बट रिमेंबर यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डायपोल मूवमेंट है दैट इज लेस देन कार्बन एंड Cl बॉन्ड.
वी हैव कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड ऑन दिस साइड, यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में है, बट ओवर हियर वी हैव कार्बन एंड Cl बॉन्ड, कार्बन और Cl में वी हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होने की वजह से द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन टोलीन. दिस इज 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, सो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन में व्हाट इज हैपनिंग, CCl का बॉन्ड आ जाता है. ओवर हियर वी हैव CC बॉन्ड जो टोलीन के साथ बन रहा है. टोलीन के मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनता है. सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका डायपोल मूवमेंट इज लेस देन दिस वन. दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज ऑर्थो पोजीशन. सो बेटा ऑर्थो और मेटा में से प्लीज रिमेंबर, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपने पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ए लेवल्स में, और इसी तरह से FSC पार्ट 2 में भी आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. तो बेटा जो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इनका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होएगा. सो दिस इज मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन का डायपोल मूवमेंट कम होता है. तो वी कंक्लूड दिस थिंग ओवर हियर कि सबसे कम किसका होएगा, फोर्थ का सबसे कम होएगा, फोर्थ से ज्यादा किसका होएगा, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले से ज्यादा किसका होएगा, ऑर्थो का या मेटा का, मेटा का. सो 3 सबसे ज्यादा होएगा जी ऑर्थो पोजीशन का. ऑर्थो में डायपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन मेटा और इन दोनों से कम होएगा टोलीन में, टोलीन से कम होएगा यहां पे जो पैरा पोजीशन है, पैरा 1,4 जो पोजीशन है आपके पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में वी हैव जीरो डायपोल मूवमेंट. सो इट इज नॉन पोलर, ये भी आप बता सकते हो नॉन पोलर है. इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज नॉन पोलर. ठीक है, होप सो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो नाउ हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज अ पोलर कंपाउंड. बेटा पोलर कंपाउंड्स क्या होंगे, जिनका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा, जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो. ठीक है, CCl4 बेटा दिस इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल. कैसे पता चल रहा है, कार्बन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 4 एंड इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स. 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए और चारों बॉन्ड्स बन रहे हैं. इट इज नॉट हैविंग एनी लॉन पेयर. तो बेटा लॉन पेयर भी नहीं है, चारों बॉन्ड्स भी बन रहे हैं और हर तरफ एक जैसा एटम भी है. सो दैट इज सिमेट्रिकल. सो इसका डायपोल मूवमेंट जीरो है. डायपोल मूवमेंट जीरो जिसका होता है दैट इज नॉन पोलर. सो ये तो नहीं हो सकता. BF3 दिस इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल. AB3 टाइप मॉलिक्यूल कैसे है पता कैसे चलेगा, बिकॉज यू कैन सी 3 बॉन्ड्स ऑफ बोरॉन एंड फ्लोरीन ओवर हियर. बोरॉन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 और 3 ही उसके बॉन्ड्स बन रहे हैं. इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड, सो देयर इज नो लॉन पेयर और हर तरफ एक जैसा ही एटम है, सेम एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम बोरॉन है यहाँ पे. तो बेटा BF3 भी आपके पास नॉन पोलर होएगा. It has zero dipole moment. Now this is 1,2-dichloroethene. This is 1,2-dichloroethene. But we have to observe one thing over here कि यहाँ पे एक cis डाइक्लोरोएल्कीन है और एक तरफ ट्रांस डाइक्लोरोएल्कीन है. In this case we have cis. बेटा अगर ये दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं तो दैट इज cis. तो दिस इज cis 1,2-dichloroethene and over here we have ट्रांस एल्कीन. बेटा ट्रांस डाइक्लोरोएल्कीन में क्या होएगा,
अगर दोनों डायगोनल्स आपके पास यहां पे सेम एटम्स के हैं, सेम ग्रुप के हैं, सो बेटा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस. सो दिस कंपाउंड इज ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथीन. तो बेटा यहां पे दो C और Cl का जो डायपोल मूवमेंट है, वी कैन कैंसिल दैट डायपोल मूवमेंट विद दिस CCl बॉन्ड. और ये जो CH बॉन्ड है, इट्स डायपोल मूवमेंट कैन बी कैंसल्ड आउट बाय दिस CH बॉन्ड. इसका जो डायपोल मूवमेंट होएगा, वी कैन कैंसल आउट द डायपोल मूवमेंट्स ऑफ दीज टू बॉन्ड्स. तो बेटा अगर डायपोल मूवमेंट्स कैंसल आउट हो जाते हैं, सो इट मींस इट बिकम्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इट्स डायपोल मूवमेंट बिकम्स जीरो. तो बेटा डायपोल मूवमेंट जीरो होएगा तो नॉन पोलर हो जाएगा. सो इट मींस ट्रांस एल्कीन्स या ट्रांस डाइक्लोरोएल्कीन्स जब भी आ जाएंगे, उनका डायपोल मूवमेंट इज लेस देन सिस एल्कीन्स. सो नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपने कि जो डायपोल मूवमेंट है ऑफ सिस, दैट इज ग्रेटर देन द ट्रांस. ट्रांस का डायपोल मूवमेंट दैट इज जीरो. So it means that is non-polar. It means it has low melting and boiling point. तो बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, if you have cis alkene and trans alkene, which one has greater boiling point? तो बेटा relate that concept with the dipole moment. Dipole moment से you can identify the bond polarity, boiling point and polarity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट. सो तमाम टॉपिक्स इंटरलिंक कर जाते हैं. सिस एल्कीन्स और ट्रांस एल्कीन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर अप हो जाता है. सो नाउ टेल मी बेटा, ये जो CH4 कंपाउंड है, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में अभी कंपाउंड्स को डिस्कस किया, CH4 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होएगा? इट हैज जीरो डायपोल मोमेंट. रीजन क्या है? बिकॉज इट इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल. AB4 टाइप मॉलिक्यूल में इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, बट इट इज नॉट हैविंग एनी लॉन पेयर. अगर CCl4 कंपाउंड की बात करूं तो CCl4 कंपाउंड में अगेन दैट इज हैविंग जीरो लॉन पेयर और तमाम एक जैसे ही एटम्स है. व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट एटम्स? फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है CHCl3. बेटा जैसे ही आपने एक एटम इसमें चेंज कर दिया, नाउ इट इज नॉट हैविंग अ जीरो डायपोल मोमेंट. रीजन क्या है? बेटा Cl और Cl बॉन्ड, CCl बॉन्ड एक तो कैंसिल कर दोगे, एक तरफ तो CH और एक तरफ Cl बचेगा. वी कैन नॉट कैंसिल द डायपोल मोमेंट ऑफ दीज टू बॉन्ड्स. सो इट्स डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, इट इज पोलर मॉलिक्यूल. CHCl3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल. और अगर CH2Cl2 कहा जाता तो बेटा दैट इज अगेन पोलर मॉलिक्यूल. वहां पे भी कैंसलेशन ना हो सकती. CH3Cl दैट इज अगेन पोलर मॉलिक्यूल, तो वहां पे भी कैंसलेशन ना हो सकती. CCl4 में और CH4 में वी कैन कैंसल आउट ऑल द डायपोल मोमेंट्स एंड द मॉलिक्यूल विल बिकम नॉन पोलर, जीरो डायपोल मोमेंट होने की वजह से. सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक. सो जो क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में मैंने आपसे पूछे हैं, यू मस्ट हैव टू मेंशन द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आपकी क्वेरीज अगर हैं या आपकी फर्दर उसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, आई कैन आंसर योर क्वेरीज और जो भी इश्यूज होंगे आफ्टर चेकिंग योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो होप सो ये टॉपिक अब कवर अप हो गया होगा.